Hello everyone, my dear students. We are discussing about surds and indices, and we have covered basic concept related to surds and indices, that means ghatank or karani, in previous videos. Now we will continue our series related to surds and indices. In this section, the first question is that solve the following questions. Find out the solution of this question. Now here 4 into, it is not karani, it is not surds, because this will be surds if here represented. Now the position of 4 is changed. 4 की जो पोजीशन है वो इधर है, इसलिए ये इंटू है, 4 इंटू स्क्वायर रूट 0.00081. Now find out. First we should make pair. Another way, here decimal is coming, so we can write the same number in this way. 81 by point here 2236. Okay, 222000000. Now that means 3 zeros. We can write 9 into 9 by 1000 into 1000 and 4 into, so we can write 4 into 9 by 1000, that means 36 by 1000. Then we can write here 3 zeros, so we should put decimal before 3 digits, so 630 dot. This will be the answer. Clear? Now moves on. Next question. Find out the square root of 0.000069169. Now that is the very simple. Here 9 is available. We should make pair. This is pairable. Now then we can write this number 69169 by here point, and we should divide the zeros here. There are 2, 2, 4, 2, that means 8 zeros, so we should write 4 zeros separately. Now find out the number. This is the square of 263. How we can calculate this value? That is very simple way, with the help of previous understanding. Now, do you know last digit 69169, last digit is 9, so this will be 3 and 7. Which number will be taken after solving the another way? Now comes at here, we should exclude this 6. Now do you know square of 25 is 625? Now square of 26 will be 676. Now square of 27 will be 729, which will be great. So if that will be great, then we can write only 26. Now in 26, which number will there are 2 numbers, so which number we should consider? This is the matter. If we multiply 26 and 27 and according the base differences of 691, this will be helpful.
multiplication of 26 into 27, multiplication of 26 into 27 will be great, will be great, and 6 value 691 is less than this number. If this number is less than, then we should consider 263 as a square of 69169. So the answer will be 263 by, now here 4 zeros, so we should attach decimal before 4 digits, 36200 dot. This will be answer. Clear? Now we should move on next question. Now find out the square root of 0.8 here. Now find out the square root of 0.8. So first we should line. Now we should put up 0.8 because after decimal we should make pair first. So we should put 0, 0, 0, 0 here in this way. Now this 0 is used to how much number we want after decimal. Clear? This is the whole scenario. So first here start with decimal. So first we should put decimal. Then here 80. 9 9 ja 81. So we should take 8. 8 8 ja 64. Then this will be 8 8 8 ja 60. Now here sister, after subtracting we will get 10 minus 4 it will be 6, and 7 minus 6 it will be 1. So we should depict other numbers. Now this number is less, so we carry another number. Now here this number will be great. Now there is 16, there is 16, the same things, so we should exclude this point. Now come at the new point, here 16, we should take here 3 digits 160, and if we multiply 16 into 10 we will get 160, but here 1600. So if we put any number here, if we put any number here, we should put here, and after multiplication then we will get, so it will be great value. So here put 9. If we put 9, so we should put 9 here as well as here. Clear? Now first we should multiply with 9. 9 9 ja 81. So here 2 will come, and then 5 and 1. Clear? After multiplication 16 9 ja 144, and here 8, if we add then we can 152 1. Now here we 9 9 18 7 and 1. Clear? Now after subtracting, what we will get? Here 9, here 7, here 0 0. This number is great, this number is less, so we should carry another 0, another pair. Now consider that point such that here 3 points, so we should take first 3 point. And how can I multiply? This is the recognition. So if you take number such that here 178, and if you take 10, then it will be greater than, because here 17 and digits will be increased. Now then what we should do? Now first 178, and if you take
7 times. Then here 778 such that it nearest to 80 and 7 8 ja 56 560. So 700 and 560 700 and 560, it will be great in here 790 only. So we should exclude this point. Now then we come at number 6. If you come at number 6, मतलब अगर आप 6 पे आते हैं तो क्या करते हैं, 6 पे आते हैं तो बहुत सिंपल बात करते हैं कि भाई 6 का इंटू इससे करेंगे, 6 का इंटू इससे करेंगे तो 600 हो जाएगा, और ये जो है 80 है तो नियरेस्ट टू 80 है, 6 8 जा 480, दैट मीन्स 6 और 400 1000 से एक्स्ट्रा जा रहा है। जब 1000 से एक्स्ट्रा जाए तो इसको भी नहीं लेंगे, 5 लेंगे तो 500 एंड इसके 540 और वो भी 1000 से। नाउ अगर हम यहाँ पर 4 ले लें और इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, वो नंबर लेस होगा। चलो चेक करके देख लेते हैं। 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा, 32 33 हो जाएगा, 3 इज रिमाइंडर, 4 7 जा 28 and 3 31, 4 1 ja 4 4 3 7. Then we will get, after subtracting, this will be 4 here 36, so 64 will be. Now here this will be 8 minus 1, that will be 7. Now so here put 4. This will be, here we are subtracting each other and here we are adding each other. After adding, and this will be multiplication as well. Clear? So this is the answer. Now we should move on next question. Now find out the square root of the given question. Now first we should simplify this. First we should simplify this. What we will get? Here we will get 125 by 10. Then here 8 by 1. Here 144 by 100. Clear? Here 100. Now this is the, we can factorize this in this way. 5 into 5 into 5, and this will be 2 into 2 into 2, and this will be 12 square of 12. Clear? This is the square of 12. So 12 into 12. Now here 10 into 10 into 10. What we will get? 5 2 ja 10. Then 2 1 ja 2. Now here 5 2 ja 10. 5 2 ja 10. 2 into 2. Here 12 square, so it will be 12. Clear? This is the whole understanding about this concept. Find the value of the given question. Now this is the square root of 12, so put here 0 1 6 9. Pair is the similar. Here we can make pair is fixed. Now here pair is fixed. Now 169 is the square root of 13, but here 4 zeros, so we should take decimal before 2 zeros, so this will be 0.13. Now minus 4 4 it is the square of 21. This is the square of
21. Now then here decimal after 2, so we should put decimal before 1, 2.1. Now this will be 12.13 minus 2.1, and this will be, if we subtract, we will get 10.03. This will be the answer. Clear? Now move on, next question. Here in this question, find out the value of x. So what will be the value of x? This is the most important point. Now here is square root. Then if we shift this square root other side, then it will be square of 92. Now then it will come 2116 into square root 48 divide x and equal to 92 into 92. Clear? Then we can write the same things. 48 by x equal to 92 into 92 by 2116. Clear? Now what we will get after simplify this? Now first we should simplify, so divide by 4. After if we divide 4, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे? तो 4 2 जा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, सो 12, 4 3 जा 12, 23, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, एंड हियर 10, 4 2 जा 8, and then 3 4 9 ja. Clear? This is the square of 23. This is the square of 23, so we can write 23 into 92 by 23 into 23. This is the also multiple of 4 into 23. Now first we should exclude, then here 4. Then we will get 48 by x equal to 4 into 4. Here x will be 48 divided by 4 into 4. So 4 2 ja 8, 4 1 ja 4 by 4, 4 3 ja 12. So we will get x equal to 3. This is the answer. Now we should take another question. Solve this question. This is a tricky based question because 225 is the square of 15. So there is decimal. So first we should write 15. Then here after decimal there are 2 points. मतलब decimal के बाद कितने पॉइंट हैं? 2 हैं, तो हमें एक पॉइंट पे decimal लगा देना है. बिफोर एक पॉइंट पे decimal लगा देना है. यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर? अब यहाँ पर भी 15 पहले लिख दीजिए. यहाँ पर आफ्टर decimal कितने पॉइंट हैं? 4 है. हमें 2 नंबर पहले बिफोर 2 नंबर वी शुड राइट decimal, put decimal here. Clear? Before 2. So this will be 0.15. Now it will be 50. Here first we should make pair. पहले हम पेयर बनाएं.
यहाँ कितने पार्ट है, 3 टाइम्स पेयर है, तो 3 टाइम्स डेसिमल होना चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल लिख दो। क्लियर? बिफोर डेसिमल we should add, so there is 1 only. Clear? Now after decimal 5 1 then 6, here suppose this is 0 0, this 0 this 0 0 0 0 5, so here put 5 only. Now there is any mistake? Here 516 and here 516 as well, then 5, because there is 3 after division, there is 3 numbers. Clear? Now this is the whole solution of the. Now move on next question. इस क्वेश्चन का हल निकालना है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इस पे केवल एक ही अंडरस्टैंडिंग है। केवल 2 या 3 क्वेश्चन की टाइप्स ऐसे हैं जिनको हमेशा हमेशा माइंड में रखना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए कि ये कैसे हल होंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर जगह कहीं ना कहीं आपको अटकाएगा। सो बॉटलनेक है। आप अगर ये नहीं आता है तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट फिर छोड़ देंगे। इसलिए हमें इसमें, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ फार्मूले इंक्लूड है। क्लियर? तो हमें ऐसे नंबर चूज करने चाहिए कि वो हमारे स्क्वायर में ये आ जाए। तो पहले हमें इसको इसमें तोड़ना होगा। क्लियर? या तो हमें इसको फार्मूला प्रूफ करें, नहीं तो हमको ऐसे नंबर चूज कर लेने चाहिए जो ये स्क्वायर दे दें। क्लियर? अब ये बताना है, इसको हल करना है और हल करके हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। तो हम इसका ऐसी एक्स वैल्यू, इस रूट को हटाओ, यहाँ पर लेकर के और शिफ्ट करो। तो जब शिफ्ट करोगे तो ये स्क्वायर में बदल जाएगा। तो स्क्वायर का फार्मूला हमें मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम चलो ऐसे लिख देते हैं। हम इसको लिख देंगे रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर। देन क्या लिख देंगे, 14 प्लस 8 रूट 3 लिख देंगे। देन क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर करते हैं। तो इसको स्क्वायर करते हैं तो एक्स आएगा, ये वाई आएगा, फिर 2 रूट एक्स वाई आएगा। 2 रूट एक्स वाई ये सब किसके इक्वल है, 14 प्लस 8 रूट 3। इसके मतलब क्या है, ये जो नंबर है इसके इक्वल है और ये वाला नंबर इसके इक्वल है। तो चलो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसके देन वी कैन से दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड 2 रूट एक्स वाई विल बी 8 रूट 3। 8 रूट 3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? जब ये 8 रूट 3 के इक्वल होगा तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, तो रूट एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 4 जा 8 4 रूट 3 हो जाएगी। और एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, फिर एक्स वाई इसका इधर स्क्वायर रूट है उधर जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 जा 16 16 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना। मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितनी हुई, 48 हुई। क्लियर? अब हमें एक्स वाई की भी वैल्यू पता है, एक्स प्लस वाई की भी पता है। तो हमको जो भी पूछ रहा है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है तो बहुत सिंपल बात है भाई, हम इसको 2x वाई और माइनस 2x वाई लिख सकते हैं। मतलब हम इसको इधर ना लिखने के बजाय हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर आएगा प्लस 2x वाई आएगा। लेकिन यहाँ पर तो 2x वाई नहीं है तो हटा देते हैं। हटा देने के लिए क्या कर देंगे, 2x वाई कर देते हैं। हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है, एक्स वाई की वैल्यू पता है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दो। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या रखोगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 14 है, लिख दो 14 स्क्वायर माइनस 2x वाई 2 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 48। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। कितना होता है, 196 माइनस
48 टू जा कितना होता है 96। जब 48 96 होता है तो कितना सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर। तो मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप पता चल गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 100। ये तो केवल एक पैटर्न था, इस ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन हमको इस तरह भी हल करना आना चाहिए। मतलब ये इसका नहीं है, लेकिन इसका पैटर्न हमें एक और तरीके से, पैटर्न नहीं है मतलब जो है इस क्वेश्चन को हल करना है, बस ये मकसद है। अगर इस क्वेश्चन को हल करना है तो हम एक डिफरेंट अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को सोचते हैं। हो सकता है ये नंबर कटे ना, लेकिन हम जो बताना चाहते हैं उसको सुनना है, क्योंकि वो ज़रूरी है। यहाँ 14 लिखा हुआ है, हम तो सबसे पहले इसको कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन, क्योंकि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 14 है और कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या अंदर बच गया 7 + 8 √3। क्लियर। 7 + 4 √3। अब हम केवल आपको ये वाला नंबर बताना चाहते हैं, ये नहीं, क्योंकि इसका रूट नहीं निकलेगा स्क्वायर, तो हम ये इस एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो हम नंबर लिख देते हैं, आपके सामने एक नंबर ले लेते हैं 7 + 2 √3 का अंडर रूट। क्लियर। हम लिख लेते हैं नंबर आपका 7 + 4 √3 का स्क्वायर रूट। इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन, यही हमारा है। क्लियर। बहुत सिंपल बात है, सिंपल है। ये जो नंबर है 7, इसको हम 4 + 3 लिख सकते हैं, और हम इसको नंबर को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × √3 लिख सकते हैं। अब हम इस नंबर को और लिखना चाहें, सिंप्लीफाई करना चाहें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, इसको √3 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, +2 × 2 × √3 लिख देते हैं। अब ये देखो, ये a² + b² + 2ab बना, मतलब ये 2 + √3 का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, और ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 2 + √3। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, और ये पैटर्न हमको हल करना आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगते हैं, यहाँ पर सोचना पड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा लोग बच्चे इसको छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। हमको यहाँ के जो नंबर लिखे रहते हैं उसी नंबर से इसका ऐसा जो है क्लासिफिकेशन करना है कि ये आसानी से हल हो जाए। और ये अधिकतर इसी तरह स्क्वायर के फार्मूले बनते हैं, समझे। क्लियर। सो वी शुड मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम इसके अपोजिट का इंटू कर देते हैं। तो हम इसका वैल्यू निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो नंबर आपने लिखा है √7 - √3, इसी का अपोजिट नंबर साइन वाला नंबर चूज कर लेते हैं। अब हमने कॉन्जुगेटिव नंबर चूज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा √7 + √3। तो जब नीचे मल्टीप्लाई किए हो तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √7 + √3। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो बचा रहेगा आपका √7 + √3। ठीक है, नीचे क्या होता है a - b × a + b लिखा, तो √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 आएगा, -b² √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 7 - 3 4 होगा, तो मतलब 1/4, और आपका आंसर इसमें कन्वर्ट हो गया। तो हमें ये कन्वर्जन हमेशा मालूम होना चाहिए। ये कभी कभी क्या होता है, जब आप जो है साइन कॉस्ट ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये जो है नीचे वाली टर्म को हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, जब हम इंटरमीडिएट की क्लास में जो सॉल्व करते हैं कंजुगेटिव नंबर्स। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमको सिंप्लीफाई करना, डिनोमिनेटर पार्ट को, हर के पार्ट को जो अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो हमें इसके कंजुगेटिव नंबर्स को लेकर के मल्टीप्लाई, और देन वी एबल टू सिंप्लीफाई दिस एंड वी कैन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम्स।
So this is not tough. Clear? Now we should take another question. Now इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल बात, अगर हम स्क्वायर में 1 से 25 तक का, 1 से 30 तक का स्क्वायर और क्यूब हमें मालूम है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो भाई ये किसका स्क्वायर है, 14 का। तो डायरेक्ट करना है तो भाई ये 14 का स्क्वायर है, तो 14 का इसमें ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 14, इसका स्क्वायर 14 होगा। क्लियर? इसका स्क्वायर 14 होगा, लिख दिए। अब इसको इसमें ऐड कर दिए तो कितना आया, 7 4 कितना हुआ, 11 हुआ, और ये 1 1 2 हुआ, और ये तो हमें इस ऊपर स्क्वायर रूट लिखा है तो 121, तो 121 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 को इसमें ऐड कर दो, कितना हुआ, 4 1 5 हुआ, 1 1 2 हुआ, 2 2 5 हुआ। 2 2 5 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 15 होगा ना। तो आंसर डायरेक्ट इसका आपका कितना आ जाएगा, 15। ये है प्रोसेस है। क्लियर? यहाँ पर हमने क्या किया है, ये स्क्वायर रूट किया है, ये स्क्वायर रूट किया है तो ये आया है, तो फिर देन इसका स्क्वायर रूट किया है तो ये आया है, फिर जो आंसर आया है तो उसका स्क्वायर रूट किया है, तो फिर ये लास्ट क्या हो गया, फाइनली हमें 15 रिसीव हो गया। क्लियर? हमें 15 प्राप्त हो गया। सो वी शुड टेक अनदर क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू निकालनी है, कि किसकी वैल्यू, n की वैल्यू निकाली। एक तो ये हुआ कि ये डायरेक्ट इसको इस स्क्वायर रूट के इधर शिफ्ट करो, और इतनी बड़ी नंबर है इसका स्क्वायर करो, वो करो, तो आंसर आ सकता है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर ले तब भी आंसर ला सकते हैं। तो हम पहले सिंप्लीफाई थोड़ा कर लें, इसको हम 25 × 2 लिख सकते हैं। ये तो हम सिंपली उसी तरह ही कर लें, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये अपने आप ही स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, प्लस 2 × हो जाएगा क्या, 50 × 128 हो जाएगा। अब ये n हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई इसको कर लो तो कितना हो जाएगा ये। अब हम इसको डिवाइड करना चाहे 2 से तो कर सकते हैं, ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लो, इसको 25 2 जा लिख सकते हो, और इसको 64 2 जा लिख सकते हो। अब ये ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 25 + 64 को ऐड करो, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 89, और इधर 2 इसका और इसका पेयर हो जाएगा, ये 8 का है, ये 5 का है, तो 2 × 5 × 8 = 9, 5 2 = 10, 10 8 80, 80 + 89 will be n. Now here n = n क्या हो जाएगा, 169। क्लियर? 16 गलत किया क्या मैंने, जब मैंने 2 से डिवाइड किया था तो 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद, तो n/2 और n/2, तो जो आंसर हो जाएगा वो × 2 होगा। मतलब आंसर आपका 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, और 2 1 जा 2 1 3। क्लियर? 338 ये है आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर 2 से मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट सीरीज। नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो
this series. Thank you guys.